Hello everyone, welcome you back in this physics video, and in today's video we will learn about how to find out the magnetic field by using of White-Sauber law for a current carrying loop or a ring or a coil that we can also call it. At a point on its axis, so we are going to find out today this magnetic field. So for this that I am going to consider, let us to have this is the circular loop. So this circular loop, it is having radius r. Let it be the center of this circular loop. So this is O over here and its center is r. That radius is r. Okay, and a line is passing from its center. So line is passing from its center. This is said to be that axis of the circular loop. And from this center at a distance x, we are supposing to find out this magnetic field. So this is that point P where we want to find out magnetic field. Now over here a current is passing through this circular loop. This is the current. Let it be passing in this way. It is the current which is passing through this circular loop. Okay, over here we are considering that this is the three axis over here. तो इसमें जो हमारे पास ये जो loop है, it is placed in that YZ plane. ठीक है, तो loop is placed in YZ plane. Okay, and its axis is along x axis. This is x axis over here. This is y axis, this is z axis. ठीक है, तो loop किस में रखा गया? YZ plane में रखा गया, और इसकी एक्सिस किस तरफ है? जो इसकी एक्सिस है वो x एक्सिस की तरफ है. ठीक है. So at a distance x from its center, we want to find out that magnetic field at point P. ठीक है. So for this purpose now I have considered कि इसमें current I pass कर रहा है, and let over here this is the small current element. ये हमने एक small current element consider किया. ठीक है. So this small current element will behave as a tangent on this सर्कुलर लूप. ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट हमने सपोज किया DL, ये क्या कर रहा है? एक टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो डायरेक्शन इसकी कुछ इस तरह से बनी. ठीक है. एंड नाउ ओवर हियर व्हाइट-सावर्ट्स लॉ में ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है ये इस पॉइंट P से कितना दूर है? एट व्हाट डिस्टेंस इट इज फ्रॉम दिस पॉइंट P. ओके, सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू जॉइन दिस वन विद दैट पॉइंट P. Okay, so let it be this distance is going to be r. So it is going to be a right angle triangle over here, and from this we get that this r will come as r square plus x ka square. This is over here. Okay, so what will be the magnetic field due to of this small current element at point P? So it is given by White-Sauber law. ठीक है, तो due to small current element magnetic field at P. So this is equal to mu naught I dl upon में that of 4 pi, and the distance of this one from there it is r square, and it is sine of the angle theta. ठीक है, तो ये थीटा एंगल जो है दिस इज द एंगल बिटवीन DL एंड दैट पोजीशन. ठीक है, तो इस DL एलिमेंट और R के बीच में ये एंगल क्या बन रहा है? हमारे पास थीटा बन रहा है. नाउ हाउ मच इज दिस एंगल? सो इट इज ओवर हेयर दिस एंगल इज फाउंड टू बी 90 डिग्री. ये एंगल कितना है हमारे पास? 90 डिग्री है. नाउ हाउ दिस इज 90 डिग्री? सो इन 3D आई विल शो यू दिस. सो ओवर हेयर ये जो एंगल है वो कितना बना यहाँ पे? 90 डिग्री बना, बिकॉज DL इज परपेंडिकुलर टू दैट R. ठीक है, तो जो हमारे पास करंट एलिमेंट है वो उस पोजीशन के परपेंडिकुलर है. सो देयरफॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल कम ओवर हेयर दैट ऑफ म्यू नॉट आई DL. तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, एंड अपॉन में दिस विल बी दैट 4 पाई r स्क्वायर. सो मेक इट योर इक्वेशन नंबर 1. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ लेट अस टू लर्न ओवर हेयर कि यहाँ पर ये जो एंगल है हाउ इट इज टेकन टू बी 90 डिग्री. ओके, सो फॉर दिस पर्पज लेट अस टू हैव दिस इज दैट सर्कुलर लूप. ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है. ठीक है, तो इसमें ये तीन एक्सिस हमारे पास शो की गई है जो बिचली परपेंडिकुलर है. तो ये एक्सिस इसकी y एक्सिस है. द एक्सिस विच इज शोन टूवर्ड अस, ये इसमें x एक्सिस है. दिस इज ओवर हेयर x एक्सिस, और दिस इज अवर z एक्सिस. ठीक है, तो ये जो प्लेन है हमारे पास इस रिंग का, चेक इट आउट, दिस प्लेन इज इन YZ. तो ये y है और ये z. ठीक है, तो YZ में इसका प्लेन आता है. दिस इज दैट एक्सिस ऑफ दैट सर्कुलर लूप.
तो ये एक्स एक्सिस इन दिस डायग्राम विच इज शोन ओवर हेयर, ठीक है। नाउ यू विल नोट ओवर हेयर जो हमारे पास करंट है वो कैसे चल रहा है इसमें, इन दिस वे, ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो दस आई हैव कंसीडर ओवर हेयर दिस इज द स्मॉल दैट एलिमेंटल लेंथ, तो ये एक टेंजेंट से यहाँ पे शो की गई है, चेक ओवर हेयर दिस इज अ स्मॉल टेंजेंट, तो ये वाइट पेपर से शो किया गया है टेंजेंट को, ठीक है। नाउ दिस दैट यू विल फाइंड दिस इज दैट पोजिशन फ्रॉम दिस पॉइंट पी, हेयर इट इज द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। सो नाउ चेक ओवर देयर द एंगल, ठीक है। अब ये एंगल जो आपने यहाँ पर चेक करना है किसके बीच में बन रहा है, ये इस पोजीशन के बीच में, यहाँ पर इस एलिमेंटल जो डायरेक्शन है और इस पोजीशन, ये जो थ्रेड मेरे पास है जो पोजीशन को शो कर रहा है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। सो चेक इट ओवर देयर, दिस एंगल दैट यू विल फाइंड इट इज टू बी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना एंगल बना हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस एंगल दैट वी हैव सेड ओवर हियर इट इज ऑफ 90 डिग्री, दैट्स व्हाई दैट वी सेड दिस DL इज परपेंडिकुलर टू R, ओके। नाउ ओवर हियर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, ठीक है। तो उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल यूज अवर राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है, हमने इसको होल्ड करना है, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ थंब होना चाहिए, एंड ओवर हेयर ये जो हमारे पास फिंगर है ये इस सर्कुलर जो लूप है उसके अंदर से क्रॉस होती है, ठीक है। एंड इन दिस वे यू विल फाइंड दैट कि ये हमारे पास फिंगर इस तरह से कर्ल होकर के इस पॉइंट P से क्या होगा, अपवर्ड में आएगी, ठीक है। तो अपवर्ड में हमारे पास इस पॉइंट P के ऊपर ये अलोंग द थ्रेड एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इस पोजीशन के परपेंडिकुलर होगी, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होगी, इस R के परपेंडिकुलर होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, ठीक है। रिमेंबर वंस अगेन, किसके परपेंडिकुलर, इस R के, ये R यहाँ पे सपोज किया गया है, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू इट, ओके। So over here this magnetic field, now I am going to show this is the small magnetic field which is acting perpendicular, it is perpendicular to that R, ठीक है। सो ओवर हेयर लेट अस टू हैव दिस एंगल, ये जो R ने पोजीशन के साथ फॉर्म किया था एक्सिस और उस R के बीच में एंगल, दिस इज फाई एंगल ओवर हेयर, ठीक है। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू एक्ट एट एन एंगल विद दिस एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास एक एंगल के ऊपर एक्ट कर रही है। सो देयरफॉर टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फील्ड आई एम गोइंग टू स्प्लिट दिस DB, इस DB को मैं क्या करता हूँ, दो कंपोनेंट में स्प्लिट करता हूँ। एक कंपोनेंट इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस विल बी अवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, DB cos थीटा, हॉरिजॉन्टल सॉरी यहाँ पे एंगल फाई ले रहे हैं तो एक एंगल बनेगा इसका DB फाई, ठीक है। और जो दूसरा एंगल होगा हमारे पास दिस विल बी DB sin फाई, तो ये इसके दो एंगल, दो कंपोनेंट बनेंगे, DB cos फाई और DB sin फाई, ठीक है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, ठीक है। सो नाउ लेट अस टू स्प्लिट ओवर हियर, तो ये जो रिजल्टेंट है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा एंड वन कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम जब यूज़ करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। सो नाउ ओवर हियर दैट विच कंपोनेंट विल कम टू दिस साइड, ठीक है। तो ये कौन सा कंपोनेंट इस तरफ होगा, सो वी विल फाइंड दैट ये जो मेरे पास ये जो यहाँ पर लाइन मैंने डॉटेड शो किया है इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, ये क्या है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास बाई सिमेट्री यू विल गेट दिस एंगल विल बी फाई, ये एंगल फाई बन जाएगा, ठीक है। सो इफ दिस एंगल इज फाई देन विच कंपोनेंट इट विल कम, तो ये बेस के साथ जिस तरफ एंगल बनता है वो हमेशा ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया जाता है, तो ये cos फाई कंपोनेंट बना, एंड दिस साइड इट विल कम टू अस दैट sin फाई, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग sin फाई कंपोनेंट एक्ट करेगा, ठीक है। सो दैट्स वी गेट ओवर हियर, ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट हमने लिया था उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दो कंपोनेंट में डिवाइड हुई, जिससे एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरा उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। नाउ सिमिलरली ओवर हियर इस लूप के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हमारे पास करंट लूप बनने वाले हैं, देयर आर सो मेनी करंट लूप, ठीक है। सो दस आई एम गोइंग टू कंसीडर ओवर हियर दिस इज अनदर, ये इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन के ऊपर मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट जिसकी सेम लेंथ है, ठीक है। तो इसमें से ये करंट सेम करंट पास कर रहा है, सो इट इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट P,
तो जितना ये डिस्टेंस पर था उतना ही ये डिस्टेंस पर है, दैट इज आर ओवर हेयर। ठीक है, तो इसकी भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट एलिमेंट की, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर, तो इस तरह से ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बट यू विल फाइंड दोनों करंट एलिमेंट सेम है तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी, सेम बनेगी। ठीक है, तो ये भी डीबी ये भी डीबी, बट दिस इज गोइंग टू एक्ट एट एन एंगल। ठीक है, तो इसलिए रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, इसको कंपोनेंट फॉर्म में। तो अगेन दैट यू विल फाइंड ये जो कंपोनेंट इसका बना ये कौन सा हो जाएगा, क्योंकि दिस एंगल एज इट इज गोइंग टू फाइंड फाई एंगल, तो ये एंगल इसका कौन सा हो जाएगा, डी बी कॉस फाई एंगल। एंड दिस एंगल विच इज अलोंग एक्स एक्सिस, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो डी बी साइन फाई होगा। सो वी आर गेटिंग ओवर हेयर कि जो जितने भी हमारे पास ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है उनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी जो डीवी साइन फाई कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस की तरफ ही एक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये कंपोनेंट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, इसलिए दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं। ठीक है, सो वी आर लुकिंग ओवर हेयर कि एट पी जो हमारे पास डीवी था उसको हमने क्या किया था, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक डीवी कॉस फाई था और दूसरा हमारे पास डीवी साइन फाई था। ठीक है, तो जो डीवी कॉस फाई है ये मतलब कि इसका जो इफेक्ट है वो कैंसल्स आउट हो जाता है, कैंसल्स इट्स इफेक्ट। ठीक है, इसका इफेक्ट क्यों कैंसिल हो गया था, बिकॉज सेम जो हमारे पास यहाँ पर जितना अपवर्ड लग रहा था उतना ही डाउनवर्ड, तो इसलिए नेट इफेक्ट जीरो हो गया था, तो कैंसिल देयर इफेक्ट। एंड डीवी साइन जो था वो क्या कर रहा था, दैट इट वाज गोइंग टू गिव रिजल्टेंट फील्ड, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है एट पी ऑब्जर्व होगी। ओके, सो दैट्स वी विल ऐड अप ऑल दोज कंपोनेंट विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, सो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड। नाउ लेट अस टू वर्क ऑन इट। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, this is given by that integration of all the sine component, dv sine component which is acting along x-axis. Okay, so therefore we will get over here dv इक्वेशन नंबर 1 से हमने dv ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, म्यू नॉट अपॉन में दैट 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वेयर, दिस वॉज फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो पुट इट ओवर हेयर, इट इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल वाई आर स्क्वेयर। नाउ ओवर हेयर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन फाई। ठीक है, तो साइन फाई अगेन लुक ओवर हेयर इन दिस डायग्राम। ओके, तो साइन फाई क्या है यहाँ पे, सो एज वी आर नोन साइन फाई, हेयर आई एम गोइंग टू राइट दिस, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो इसलिए इस फाई के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये फाई किसके साथ है, बेस और हाइपोटेनियस, तो इसलिए परपेंडिकुलर बना है इसका यहाँ पर, इट इज रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, और हाइपोटेनियस बना है इसका आर। आर की वैल्यू रिमेंबर करना, अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखी जाती है इस स्मॉल आर की वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ओवर हेयर, पुट इट देन दिस फॉर्मूला। So because this sine phi from the triangle will come to be r by r, thus we are getting it is as r by r over here. Okay, now over here you will find that it will be the integration, इसमें वेरिएबल एलिमेंट क्या है, dl है, तो इसलिए इंटीग्रेशन किसका होना है, दिस विल बी ऑफ ऑल दिस स्मॉल डी एल लेंथ, तो बाकी क्या हो गया, कांस्टेंट, तो इसलिए म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, दिस आर इज आल्सो कांस्टेंट, इन द डिनोमिनेटर यू विल गेट इट इज आर स्क्वायर, इट इज आर, सो आर क्यूब विल कम ओवर देयर, एंड हेयर यू विल हैव द इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ठीक है, तो उस सर्कुलर लूप के ऊपर जितनी छोटी छोटी लेंथ आपने ऐड की थी तो उससे क्या बन गया, सो यू विल फाइंड ओवर हेयर कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑन दैट सर्कुलर लूप इट विल बी इक्वल टू द सरकमफेरेंस, वो उसकी सरकमफेरेंस के बराबर हो जाता है, सो विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो आर उसका रेडियस है। ठीक है, तो ये 2 पाई आर हमारे पास फॉर्म हो गया। ओके, सो दैट्स वी कैन हैव दिस वन देन म्यू नॉट आई आर अपॉन में 4 पाई, this is r cube over there, and it is dl, so dl value it is 2 pi
r. So thus this resultant field at point P, it is equal to mu naught I, and this is over here pi and pi will cancel, this 2 will cancel this one, so here r into r, it is r square upon में this 2r cube. Okay, this will come over here. Now as we are known, r की वैल्यू ऑलरेडी हमने क्या निकाली थी, it was r square plus x square was there. ठीक है, so thus we get that it is mu naught I r square by 2 into that of ये क्या है r क्यूब, और इसके यहाँ पर ऑलरेडी क्या था r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर यानी कि 1/2 पावर थी. ठीक है, सो पावर का क्यूब अगर आप करते हो तो जो क्या बन जाएगा, ये 3/2 बन जाएगा. देन इट विल कम ओवर हेयर r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का होल 3/2, दिस विल कम हेयर. ठीक है, okay, thus this is that resultant field at P due to of this circular loop. So this is going to act along x axis. ठीक है, तो जब हमारे पास y z में लूप को प्लेस किया गया तो जो रिजल्टेंट फील्ड है वो किसके अलॉन्ग एक्ट कर रही है, इट इज़ एक्टिंग अलॉन्ग x axis over here. So this is the important result which we need to learn. Now it is regarding only for one loop. ये हम बात कर रहे हैं एक सिंगल लूप के लिए. ठीक है, for single loop. So single I am going to write at last, for loop which is single. ठीक है, बट इफ देर आर नंबर ऑफ लूप, अगर वहाँ पे बहुत सारे लूप्स बन जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी. ठीक है, सो फॉर दिस दैट आई एम गोइंग टू राइट फॉर एन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप. तो अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप होते हैं, देयरफॉर दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड विल कम आउट टू बी देन एन टाइम्स ऑफ सिंगल. तो एन टाइम ऑफ सिंगल, सो इट इज म्यू नॉट एन आई, एन मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और दिस इज आर स्क्वेयर अपॉन में दैट ऑफ 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का 3/2. सो इट बिकम्स ओवर देयर दैट एन टाइम. इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इफ़ वी इंक्रीजेज ओवर देयर नंबर ऑफ सर्कुलर लूप. ओके, सो दिस वॉज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल लूप एट इट्स एक्सिस ऑन दैट पॉइंट पी, एंड दिस बिकम्स ड्यू टू नंबर ऑफ लूप्स. तो इसको हमने n से मल्टीप्लाई किया ओनली दिस इक्वेशन एंड वी गेट दिस आंसर. नाउ लेट अस टू वर्क ऑन इट्स सम ऑफ द स्पेशल केसेस. So for this we are taking that case number 1, that what will be the magnetic field at the center of this circular loop. ठीक है, तो ये जो सर्कुलर लूप है इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है, तो एट द सेंटर, जस्ट टू लुक बैक ओवर हेयर विद दिस डायग्राम, ये जो पॉइंट पी है कहाँ पर लाई करेगा, इस सेंटर के ऊपर. इसका मतलब जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, दैट इम्प्लाइज जो एक्स है, ठीक है, दैट विल बी जीरो. सो यूज दिस वन ओवर हेयर, देन वी विल गेट इट इज एज म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 आर स्क्वेयर का होल 3/2. ओके, दिस विल कैंसिल द पावर and we will get it is r cube in the denominator, and 2 power of this will cancel the 2 power of this, so we will get it is mu naught I upon में double of r. Okay, this is over here mu naught I upon में double of r. This is said for only for a single circular loop. ये एक सिंगल सर्कुलर लूप की बात हो रही है. अगर n सर्कुलर लूप होंगे for n सर्कुलर लूप, देन वी विल हैव इट इज n टाइम ऑफ सिंगल. तो इसलिए नेट क्या हो जाएगी, दिस इज म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r. दिस विल कम ओवर देयर इन दैट केस. नाउ ओवर हियर केस नंबर 2 दैट वी आर गोइंग टू टेक. सो लेट अस सपोज कि ये जो हमारे पास पॉइंट था P, इट्स डिस्टेंस इज वेरी मच एज कंपेयर टू दैट रेडियस. ठीक है, तो वो रेडियस से कंपेरेबल बहुत ज़्यादा है. ओके, सो इट मीन्स यू हैव टू निगलेक्ट दिस r एंड देयर यू विल हैव ओनली x. सो देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ओवर देयर, इट इज़ म्यू नॉट आई, ओनली हेयर यू विल निगलेक्ट दिस वन. ठीक है, मीन्स x अगर 1000 हो जाता है और हमारे पास जो r है इट इज़ 1, सो 1001 इंस्टेड ऑफ 1001 व्हाट वी विल से इट इज़ 1000. तो इसलिए ये r निगलेक्ट किया हमने. सो इट इज़ आई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वेयर का 3/2. दिस पावर विल कैंसिल एंड वी गेट दैट इट इज़ म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन में 2x क्यूब.
Okay, this is that magnetic field which will be due to of this single circular loop at that point where x is very much larger than that of r. Okay, now some of the time if area of the circular loop is given to us, ठीक है, अगर एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप की बात आती है तो एरिया तो हमारे पास सर्कुलर लूप का कैसे लिखा जाता है, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, सो दिस विल कम टू बी दैट ऑफ पाई आर स्क्वेयर, ये एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप होगा. ओके, नाउ ओवर हेयर पाई आर स्क्वेयर तो हमारे पास है, पाई बनाने के लिए पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड किया, सो दस वी कैन हैव दिस इज एज म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 pi x cube. Okay, this we can do over here, and in some of the book you will also find कि इसमें क्या कर दिया जाता है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, जिससे क्या हो जाएगा नीचे 4 पाई बन जाएगा, तो इसलिए वैल्यू पुट करना आसान हो जाती है. सो यू कैन डू दिस वन ओवर हेयर, इट इज म्यू नॉट दैट ऑफ आई, लेट दिस एरिया इज गोइंग टू बी ए, सो इट इज म्यू नॉट आई ए अपॉन में 4 पाई एक्स क्यूब, and over here this 2 will come in this relation. Okay, so this is that magnetic field which is due to of this circular loop in which area is included to us. ठीक है, तो x क्या है इसमें, this is that point which is on the axis from the center of the circular loop. Now let us look over here that problem maybe you are going to face while you are going to do this question. That how I have taken this angle phi and this angle as well phi. ठीक है, मैंने बोला कि it is from the symmetry we get that the angles are same, so how it is going to be phi and phi. Okay, so for this I'm going to give you the clarification, so check it back. ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोला गया था, this was that line, ये line जो थी हमारे पास x axis थी. Okay, this was that line which was x axis. ठीक है, here we have considered this was that point P. Okay, एंड देर वॉज दिस आर, ये आर इस तरह से हमारे पास था, दिस वॉज दैट आर पॉइंट. ओके, ये वो लाइन थी आर जो आ रही थी विच वॉज फॉर्मिंग दिस एंगल फाई. ठीक है, नाउ ओवर हियर इस लाइन के ऊपर व्हाट वी सेड दैट ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर थी. ठीक है, तो ये क्या थी इस तरह से परपेंडिकुलर, किसके ऊपर थी, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर थी, यानी कि एंगल कितना बना था 90 डिग्री. ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हमारे पास बने थे, इसके दो कंपोनेंट बने थे हमारे पास. ठीक है, एक कंपोनेंट तो इसके अलॉन्ग बन रहा था और दूसरा कंपोनेंट जो था वो परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट पी. ठीक है, तो इसके इस लाइन के ये परपेंडिकुलर था, तो ये एंगल यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्या थी, इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर थी, दिस वाज परपेंडिकुलर ओवर हियर. ठीक है, सो चेक इट ओवर हियर नाउ. अब मैं बात करता हूँ, अगर ये एंगल मेरे पास फाई है, सो व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ दिस वन, ये मेजरमेंट क्या होगी, क्योंकि टोटल एंगल कितना बना है इस एक्सिस के साथ, दिस इज ऑफ 90 डिग्री. तो अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल कितना बच गया, दिस विल कम देन 90 डिग्री माइनस ऑफ फाई. ठीक है, नाउ ओवर हियर चेक इट अगेन, ये जो मेरे पास जो आर और ये जो डी बी था इनके बीच का ये जो टोटल एंगल था क्या शो किया गया था, दिस वॉज टोटल एंगल 90, ये टोटल एंगल 90 था. तो जिसमें से ये छोटा सा एंगल तो 90 डिग्री माइनस फाइव बना, तो ये एंगल की मेजरमेंट क्या आई होगी, सो यू विल गेट ओवर देयर दिस एंगल मेजरमेंट विल कम 90 माइनस 5, ये हमारे पास उसकी मेजरमेंट आई होगी. ठीक है, क्योंकि ये टोटल एंगल इन दो लाइन के बीच का चेकआउट करना, इन दो लाइन के बीच का एंगल क्या था 90 था. ठीक है, तो इतना सा एंगल अगर 90 माइनस 5 बना तो ये एंगल मेरे पास कितना हो गया 90 माइनस 5, यानी कि ये विल कैंसिल एंड माइनस प्लस, सो दिस एंगल विल कम अगेन 5, दिस इज ओवर देयर 5, ये एंगल 5 है, ये एंगल 5 है. ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव टेकन ओवर हियर, यही वो चीज़ थी वहाँ पे जो 5 कंसिडर की गई थी. Okay, so hope so that I have overcome that problem which was there, that one thing you will face the trouble while you will consider this elemental length and that angle. तो ये जो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री कैसे बना. ठीक है, सो दैट आई हैव टोल्ड यू विद द हेल्प ऑफ दिस रिंग. ओके, and second thing how this is going to be phi angle over here, so this I told you again कि how this is फाई ओवर हेयर. बट रिमेंबर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पोजीशन के परपेंडिकुलर होगी.
ठीक है। तो इसलिए DL की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो R के परपेंडिकुलर थी, ठीक है। तो thus we have taken this and we are able to get back on that our solution. And what was the resultant field direction? तो resultant field की जो direction थी that was along x axis. Okay, so thanks for watching this video.